جھنگ میں شوگر ملز کی جانب سے عدم ادائیگی، گندم کی خریداری میں غیر قانونی کٹوتی، بجلی کے بلوں میں اوور چارجنگ، خراب میٹر بر وقت تبدیل نہیں ہوتے۔ کاشتکاروں نے متعدد مسائل ڈپٹی کمشنر کے سامنے رکھ دیے۔ ڈی سی عبداللہ خرم نیازی نے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی نوید سنا دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جھنگ میں شوگر ملز کی جانب سے عدم ادائیگی، گندم کی خریداری میں غیر قانونی کٹوتی، بجلی کے بلوں میں اوور چارجنگ بر وقت تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی پر بات کر لیں گے محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، کاشتکاروں کے مسائل سننے کے لیے ڈپٹی کمشنر جھنگ کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں کاشتکاروں کی جانب سے شوگر ملز کی جانب سے ادائیگیاں نہ ہونے، جو بجلی کے بل ہیں ان میں اوور چارجنگ اور گندم کی کٹوتی کے حوالے سے کچھ شکایات سامنے آئیں۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر، شکایات کی روشنی میں کیا اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بیسیکلی کسانوں کے 4 طرح کے ایشوز تھے۔ کچھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ تھے، اور کچھ ان کو فیسکو کے خاص طور پہ زیادہ ریزرویشن تھی کہ ایکسٹرا یونٹس ڈالے جا رہے ہیں اور ان سے زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہائی وے کے حوالے سے بھی کوئی ایشوز تھے، خاص طور پہ پھر کچھ شوگر ملز کی جو پیمنٹ ہے ان کے ایشوز تھے، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے۔ تو کسان اتحاد کے ساتھ ہمارا ویسے بھی بڑا زبردست کوارڈینیشن ہے، اور ہم سب جو ہیں آف کورس ہمارا اگر زراعت ہوگی، اسٹرینتھن ہوگی تو ملک اسٹرینتھن ہوگا۔ آج میٹنگ بڑی بھرپور رہی ہے، اور سب کو ہدایت دے دی گئی ہیں باقاعدہ کہ جی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ جب آتے ہیں ان کے نمائندے ان کی بات سنی جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں، چھوٹے بڑے ایشوز ہیں، یہ بہتر ہو جائے گی چیزیں، میٹنگ کرنے کے بعد اس کا امپیکٹ بڑا بہتر آئے گا۔ جی بالکل، اس حوالے سے متعلقہ محکموں کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر رمضان مل اپڈیٹ مالکان کر رہے ہیں۔ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ میں مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے دیگر ہسپتالوں میں منتقل ہونے والے مریض مشکلات کا شکار ہیں۔ آکسیجن سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ایمبولینسز کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، مریضوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے دیگر ہسپتالوں میں منتقل ہونے والے مریض مشکلات کا شکار ہیں۔ وسیم عزیز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آکسیجن سلنڈر کی من مانگنی قیمتیں جو ہے وہ ضلع جھنگ میں موصول کی جا رہی ہیں، جس کے باعث پرائیویٹ ایمبولینسز کے مالکان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، تو وہیں پر مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے دیگر ہاسپٹل میں منتقل ہونے والے مریضوں کو جو ہے وہ دگنے کرایہ دے کر یہاں سے جو ہے وہ منتقل ہونے پر وہ مجبور ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، میرے ساتھ ایمبولینس ڈرائیور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بتائیے گا کرایہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ کرائے کی ریزن 2 ہیں۔ ایک تو پٹرول آپ کے سامنے ہے، پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ آکسیجن سلنڈر والے پورے ضلع جھنگ میں 2 دکانیں ہیں، وہ من مرضی کے ریٹ لے رہے ہیں اپنے، کوئی 2200 لے رہا ہے، کوئی 2500 لے رہا ہے۔ جب ہم سواری شفٹ کرتے ہیں تو سواری سے آکسیجن کے پیسے مانگتے تو سواری ہمارے گلے پڑتی ہے کہ جی آپ لوگوں نے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ ہماری بھی مجبوری ہے، ہم بھی کاروبار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم خود اتنے تنگ ہیں کہ پہلے جو ہماری بچت تھی 2000 بھی بچ جاتا تھا، 1500 بچ جاتا تھا، اب وہی 300 400 500، اس سے زیادہ ہماری بچت نہیں ہے، جس میں سے 30% ڈرائیور کا کمیشن نکل جاتا ہے۔ ٹائر بھی ہیں اس کے، انجن بھی ہے، پٹرول بھی ڈلوانا ہے، گاڑی کو کچھ نہیں بچتا۔ مالکان وہی اپنا رونا رو رہے ہیں۔ مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد عید قریب لیکن سپورٹس ڈپارٹمنٹ ورکرز کی تنخواہیں نہ آئیں۔ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ورکرز سراپا احتجاج، کہتے ہیں 7 ماہ ہو چکے ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ بات کریں گے علی رضا سے۔ علی، آگاہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے ورکرز کا اس حوالے سے؟ جی بالکل، عید آئی پر سیلری نہ آئی۔ سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے گزشتہ 7 ماہ ہو چکے ہیں، ان کو سیلری جو ہے وہ نہیں ملی، اس کے باعث ان کے گھروں میں جو ہے وہ فاقے چل رہے ہیں، نہ تو رمضان ٹھیک سے گزار سکیں، اور اب عید آ رہی ہے لیکن وہ پریشان ہے۔ ڈاکٹر میرے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے، عید آئی پر سیلری کیوں نہ آئی؟ جی سر، عید آ گئی ہے پر سیلری نہیں آئی، یہ سنتے کہ ابھی 1 ماہ بعد، ابھی ہفتے بعد آ رہی ہے، لیکن 6 ماہ ہو گیا ہے، 7واں ماہ شروع ہو چکا ہے، اس کی بھی آج 13 تاریخ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک سیلری نہیں ملی۔ ہمارے بھی گھر کے خرچے ہیں، لیکن کیا کریں، عید سر پہ ہے، نہ کوئی جوتا لیا، نہ کوئی کپڑے لیے ہیں، عید سر پہ ہے اور کافی مجبوریاں ہیں۔ اور بھی یہاں پہ موجود ہے، آپ کے کہیں گے کہ اس عید پر کس طریقے سے عید گزاریں گے؟ ظاہری بات ہے سیلری تو آئی نہیں۔ بہت مشکل سے ہمارا ٹائم گزر رہا ہے، لیکن کیا کریں، اب مجبور ہیں ہم بھی، اب کیا کر سکتے ہیں۔ کیا فیل کرتے ہیں؟ بہت برا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ جی بالکل، سپورٹس ڈپارٹمنٹ، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
झंग समेत पंजाब भर में तरक्की के मुंतजिर सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद SNGAD ने महकमाना तरक्की के लिए इजलास तलब करने की इजाजत दे दी। हायर एजुकेशन की जानिब से मुख्तलिफ कैडर्स में तरक्कियों के लिए वर्किंग पेपर तलब कर लिए गए। को अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, तरक्कियों के मुंतज़िर सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है SNGAD की जो है रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रमोशनल कमेटियों और सूबाई प्रमोशनल कमेटियों के इजलास जो है वो तलब करने के हवाले से इजाज़त जो है दे दी गई है, जिसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम जो ऐसे अफराद जो ये तरक्की के मुंतज़िर थे उनको वर्किंग पेपर जारी करने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। इसमें जनरल कैडर के अफराद शामिल हैं, कॉमर्स कैडर के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वर्किंग पेपर जो है जमा करवाएंगे, जिसके तहत उनकी तरक्की का अमल जो है मुमकिन हो पाएगा। इसी के अलावा जो है वो नॉन टीचिंग कैडर जो है उसमें भी और लाइब्रेरियन कैडर जो है उसके अंदर भी जो है तरक्कियों के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इन तमाम जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और क्लरिकल स्टाफ जो लाइब्रेरियंस हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि अपने पेपर जो हैं वो जमा करवाएं महकमा हायर एजुकेशन को, ताकि बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे FDA ऑफिस में FDA सिटी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल की FDA सिटी की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने और वासा अमला की सीवरेज मसाइल के बर वक्त हल का हुक्म दे दिया गया। वासा अमला FDA की सिटी डिस्पोजल को फ्लोज फाल करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वासा अमला FDA सिटी डिस्पोजल को फिल 4 फाल करेगा। FDA सिटी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। डायरेक्टर जनरल की FDA सिटी की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने और वासा अमला की सीवरेज मसाइल के बर वक्त हल का हुक्म दे दिया गया है। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FDA सिटी फैसलाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने और गुज़िश्ता दिनों में होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए जो है DGFP ने अहम इजलास तलब किया था, जिसमें आज तमाम पर FDA के डायरेक्टर्स हैं वो शरीक हुए हैं। DGFP का इस हवाले से कहना था कि FDA सिटी में मौजूद तमाम तर सिक्योरिटी लैब जो है उनको मुकम्मल तौर पे क्लियर किया जाए और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, जबकि इसके साथ साथ भी ये हिदायत जारी की गई है कि सीवरेज के मसाइल जो है इनको फौरी तौर पर हल करने के लिए FDA सिटी के डिस्पोजल जो है उसको मुकम्मल न सिर्फ फाल बनाया जाए बल्कि साथ ही साथ अमला जो है 24 घंटे के लिए वहाँ पे तैनात किया जाए, ताकि 24 घंटों में मानसून का सीजन हो या इसके अलावा FDA जिसकी सबसे बड़ी कॉलोनी है वहाँ किसी किस्म की सीवरेज मसाइल जो है वो मौजूद न हो। FDA ऑफिस में FDA सिटी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल की FDA सिटी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने और वासा अमला को सीवरेज मसाइल के बर वक्त हल का हुक्म दे दिया। हमें अपडेट कर रहे थे वकास बेग, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे पंजाब अराजी रिकॉर्ड ने माली साल के पहले 9 माह में 26 लाख रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन की। सूबाई टैक्स सर्विस चार्जेस की मद में सरकारी खजाने में 11 अरब रुपए की आमदन हुई है। पंजाब अराजी रिकॉर्ड ने माली साल के पहले 9 माह में 26 लाख से जायद की ट्रांजैक्शन की है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। कार्ड सेंटर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो अभी पहले 9 माह का दादोशुमार सामने आया तो तकरीबन 11 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं गवर्नमेंट को आमदन हुई है। तो इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फरदात, इंतकाल की फ़ीस और दीगर तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी फ़ीस की मद में 11 अरब रुपये इकट्ठे किए गए हैं। बड़ा रिकॉर्ड है और इस हवाले से अभी 3 माह बाकी है, तो ये डाटा मज़ीद बढ़ाया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड DG का इस हवाले से ये कहना था, कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल तक सर्विसेज मुहैया की जाएँ। जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जो वैन है वो दूर दराज गाँव में जाकर अपनी सर्विसेज मुहैया करती हैं। इसी तरह से देही मराकज़ माल बनाए गए हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स हैं वहाँ पर ये सर्विसेज दी जा रही हैं। तो ये कोशिश है कि लोगों को बेहतर फैसिलिटेशन की जाए जो प्रॉपर्टी के मामलात और उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो भी हो जाए। अब्दुल रहमान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का मैट्रिक सालाना इम्तिहान के मराकज़ का दौरा। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में कायम इम्तिहानी मरकज़ में जाकर इम्तिहानी अमल का जायजा लिया। तालिब इल्मों के लिए हवादार कमरों में रोशनी और दीगर दरकार इंतजाम चेक किए। डिप्टी कमिश्नर ने निगरान अमला का रिकॉर्ड चेक किया, सेंटर के बाहर के इंतजाम भी चेक किए और इन्हें मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत की।
फैसलाबाद में तालीमी बोर्ड हुकाम की बड़ी कार्रवाई। मैट्रिक इम्तिहानात में पेपरों की तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप पर लीक करने वाला ग्रुप पकड़ा गया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह ने डेप्यूटी सेक्रेटरी सरदार बाबर डोगर के हमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल 241 मगवाना से मोबाइल बरामद किए। असातिज़ा पेपर्स की तस्वीर लेकर व्हाट्सएप पर शेयर करते थे। फैसलाबाद में तालीमी बोर्ड हुकाम की बड़ी कार्रवाई हुई है। मैट्रिक इम्तिहानात में पेपरों की तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप पर लीक करने वाला ग्रुप पकड़ा गया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह ने डेप्यूटी सेक्रेटरी सरदार बाबर डोगर के हमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल 241 मंगवाना से मोबाइल बरामद किए। असातिज़ा पेपर्स की तस्वीर लेकर व्हाट्सएप पर शेयर करते थे। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में तालीम बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं और इस दौरान पहले पेपर में ही सिटी 41 ने भी मामला हाईलाइट किया था कि पेपर के दौरान ही मोबाइल पर तस्वीर बनाकर पेपर की व्हाट्सएप पर लीक की जाती हैं, जिस पर जो कमिश्नर फैसलाबाद है सिल्वर सईद, उनके पास चेयरपर्सन बोर्ड का भी चार्ज है, तो उनकी तरफ से टास्क दिया गया था सेक्रेटरी बोर्ड को कि वो इसको डिग आउट करें कि कौन जिम्मेदार है। तो आज इस हवाले से अहम कार्रवाई हुई। गवर्नमेंट हाई स्कूल 241 मंगवाना में सरप्राइज विजिट के दौरान अमले से मोबाइल बरामद हुआ और उस मोबाइल में पेपर की तस्वीर भी पाई गई, जिस पर तमाम अमले को मुअत्तल किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और इस हवाले से सेक्रेटरी बोर्ड के हमरा डिप्टी सेक्रेटरी सरदार बाबर डोगर भी मौजूद थे। कहना था इन अफसरान का कि गैर कानूनी तौर पर जो तस्वीर शेयर की जाती थी, इन अफसरान के खिलाफ, अमले के खिलाफ सुप्रीडेंट और तमाम जो मुलव्विस अमला था, उसके साथ साथ उस स्कूल का IT टीचर भी मुलव्विस था, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। फौरी तौर पर इनको ड्यूटी से हटा दिया गया है और इनकी कार्रवाई जो है उसका आगाज कर दिया गया है। शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद मुतवस्सित तबके का AC लाहौरी कूलर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। छोटे साइज के कूलर से लेकर बड़े साइज के कूलर की कीमतें में 2000 रुपए तक इजाफा हुआ। बात कर लेते हैं फसी नकवी से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और मौसम गर्मा में जो मुतवस्सित तबका है वो ख़ास तौर पर कूलर जो है वो ख़रीदते हैं। लेकिन इस साल कैसा सीज़न जा रहा है और आया कूलर उस तरह बिक भी रहे हैं या नहीं, यही जानने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। जब बताइएगा कि ये गर्मी का चूँकि सीज़न शुरू हो चुका है तो कैसी डिमांड है कूलर्स की, बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे? जी भाई, पहले की निस्बत पिछले साल की निस्बत बहुत कम है काम। मेटल का रेट बहुत बढ़ गया है, कस्टमर की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। मोटर का रेट है पिछले साल की निस्बत 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है, मेटल एक्स्ट्रा हो गया है, तो दुकानों के रेंट ज़्यादा हो गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं। इसकी वजह से कस्टमर को 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कूलर हो गया है। जो कस्टमर पिछले साल था उसकी निस्बत आता है, पूछता है, चला जाता है, वो सेल नहीं है पिछले साल। ये बताइएगा कि इसके अंदर 2 कैटेगरीज होती है, एक जो सप्लाई वाले कूलर हम कहते हैं, एक जो सादे बिजली से चलने वाले होते हैं। उनके रेट्स में कितना फ़र्क आया, छोटे बड़े मीडियम साइज? जो 12 वोल्ट के DC AC कूलर हैं उसमें 1500 से 2000 के करीब रेट में फ़र्क आ गया पिछले साल की निस्बत, और जो 220 है AC कूलर हैं उसमें 2000 से 2500 के करीब ऐसे एक्स्ट्रा हो गए हैं इसमें मार्जिन। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ये गोदाम भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वैसे के वैसे कूलर लोहे की शीट की कीमत में इजाफा हुआ है, ऐसा कहना है दुकानदारों का। बहुत शुक्रिया फसी। यहाँ पे आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अहसन इकदाम। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने डिवीजन भर की तमाम बार्स को पाकिस्तान लॉ साइट के कनेक्शन फ्राहम कर दिए हैं। वकला इस सहूलत से कैसे फायदा उठा सकते हैं, जान लेते हैं हाशिर वराइद से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से एक बेहतरीन इकदाम जो है वो उठाया गया है। डिवीजन बार के अंदर जितनी भी बार्स हैं, चाहे वो ज़िला लेवल की हों या तहसील लेवल की हों, उनको ला साइड का जो कनेक्शन है वो दिए गए हैं। ज़िली जो बार्स हैं उनको 2, जबकि तहसील लेवल पर जो बार हैं उनको एक कनेक्शन दिया गया है ला साइड का। इस हवाले से जो वकला हैं वो इसको किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे साथ सेक्रेटरी बार जो हैं राना एम बाबर खान वो मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, बड़ा बेहतरीन इकदाम ये उठाया गया है, तो वकला इससे किस तरह फ़ायदा उठाएंगे? जी, फैसलाबाद ने जो है वो मदर बार का रोल प्ले करते हुए हमने लाइब्रेरी की सहूलत जो है वो तमाम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, जो हमारी तहसीलें हैं, हमने सबको अपनी बार की तरफ से मेरे प्रेसिडेंट साहब और पूरी कैबिनेट ने हमने मंजूरी दी और सबको इस सहूलत से हम आरास्ता कर रहे हैं हर बार को। और हम चाहते हैं कि हर वकील जो है उसके लिए हर किस्म की जो है सहूलत, लाइब्रेरी की जो सहूलत है वो मुयस्सर हो और वकला ज़्यादा से ज़्यादा कानून की किताबों के साथ रिलेट रहें और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं।
जी बिल्कुल, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बार की इंतजामिया उसकी जानिब से बाकायदा बहुत शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। ईद करीब, तोबा टेक सिंह के शहरियों की ईद की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और इस हवाले से टोबा टेक सिंह के शहरियों की ईद की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई हैं। इस हवाले से टोबा टेक सिंह के बाज़ारों में खासा रश देखने में आ रहा है। इस वक्त दुकान पर मौजूद हूँ, दुकानदार से बात भी करते हैं। आप बताइएगा, ईद के मौका पर आपकी सेल में किस कदर इजाफा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इजाफा तो नहीं हुआ, बल्कि सेल डाउन हुई है। पहले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखो मार्केट में कोई थोड़ा रश तो बढ़ा है, लेकिन सेल में कोई इजाफा नहीं हुआ ना। तो रेट्स हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। लोग डिस्टर्ब हैं, पूछते हैं, देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। बहुत कम है। अब ये देखें ना कि ये मौजूदा टाइम में अब बाजारों में रश बढ़ गया, ऐसा कहना है दुकानदारों का। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। ईद से पहले ईद हो गई है। फैसलाबाद गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के असातिज़ा और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से तलबा के लिए मुफ्त ईद शॉपिंग स्टॉल का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली रारो से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड पर, जहाँ पर तलबा के लिए ईदी का एहतमाम किया गया है, शॉपिंग की जा रही है। स्टूडेंट्स की तरफ से तलबा के लिए स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे पैंट्स हैं, शूज़ हैं, शर्ट्स हैं और ये मुनफरिद शॉपिंग इस लिहाज से है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और तलबा अपनी अपनी पसंद के जूते, पैंट्स, शर्ट्स यहाँ से ले रहे हैं। मेरे साथ CEO एजुकेशन इफ्तिखार मौजूद हैं। इफ्तिखार खान साहब, इनसे बात भी कर लेते हैं। सर फरमाइएगा, बड़ा मुनफरिद स्टॉल लगाया गया है, स्कूल की तरफ से काविश की गई है, असातिज़ा की कभी कंट्रीब्यूशन है, सैलानी वेलफेयर भी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। नए कपड़े हों, नए जूते हों तो ईद का मज़ा ही और है। तो इसके लिए मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, स्कूल की इंतज़ामिया जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और बाकी जो फिलंथ्रापिस्ट हैं तमाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने बच्चों की ईद से पहले ईद करवाई है।